Today we are going to perform the next experiment, that is Newton's law of cooling, experiment number 3 and page number, just see, the page number is 23. Okay, the apparatus of Newton's law of cooling. Newton's law of cooling consists of this calorimeter. Actually it consists of a rectangular box. This is this box. ये वुडन बॉक्स है. वुडन बॉक्स के अंदर इंसुलेटर है. इंसुलेटर के अंदर दिस कॉपर वेसल विच इज़ कॉल्ड एज अ कैलोरीमीटर जैसे दिया है इज केप्ट. बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनसाइड दिस कैलोरीमीटर एंड इट इज covered with a lid here, and a thermometer and a stirrer is inserted. With the help of the stirrer, you stir the water and you note the temperature and you take the reading. मतलब after every one minute, after every minute you are going to take the reading of the temperature, and the reading comes out somewhat like this. Now I will not be showing you the calorimeter. We will be performing an experiment, an activity also, that time you all can see. Right now I am only giving you the reading. It is very simple to take the readings. Now these are the readings. These are the readings. You all can write it down. Time in minutes. Initial wait till the temperature comes down to 85 degree. Then you start the stopwatch, or you can take the reading on your watch also. The first reading of time will be 0 because you have just started. Then that is 85, and then after 1 minute it comes to 82.5. After second minute it comes down to 80, then 77.5, and so on. So you go on taking the reading till the temperature falls down with the help of a thermometer, and these are the readings. Please note down the readings. First note down these readings and then you go to the second. I will show. Just note these readings. Now note the readings in your rough journal, not in your fair journal. Note the readings in your rough journal. So these are the readings. These are the readings till 14 minutes. Till 14 minutes. So these are the time, and this is the reading of the temperature. For 14 minutes the water comes to 60 degrees. So these are the readings of 14 till 14 minutes. Okay, note this down, the readings quickly. Then we go to the next set of readings. सेम थिंग 15 मिनट्स के बाद, 16 मिनट्स के बाद, 17 मिनट्स के बाद द रीडिंग यू टेक टिल 24 minutes. After 24 minutes the temperature comes down to 52.5 degree Celsius. So these are the remaining readings. So you are taking the readings for 24 to 25 minutes. So note these readings also. So time is in T and temperature is theta. Remember, time in minutes will be denoted by T and temperature will be denoted by theta. This is T and temperature by theta. Bear this in mind. Both the cases, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी. Time is denoted by T and temperature is denoted by theta. Now note these readings also. So overall these are the readings taken. ये सारे readings लिए गए हैं. अभी comes the main part. Readings लेना difficult नहीं है, simple है. The difficult part is plotting of the graph. यहाँ curve, cooling curve. Now on the next page is how to plot the cooling curve. Okay. Now I will show you all how to plot the curve with the help of these readings. ये readings जो लिखे हो इस रीडिंग के से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. आई विल शो यू ऑल हाउ टू प्लॉट द ग्राफ. दिस इज इट. ये देखो, दिस इज हाउ द ग्राफ इज प्लॉटेड.
यहाँ पर थीटा है, थीटा इज़ हियर एंड टाइम इज़ ऑन द एक्स एक्सिस. नाउ थीटा कैसे होगा? 2 मिनट्स के बाद, मतलब 2 सेंटीमीटर के बाद यू स्टार्ट विथ 50, आफ्टर 2 सेंटीमीटर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 on the y-axis like this. And on the x-axis, after every centimeter, 1 minute, 2 minute, 3 minute like this. This is time t. So this is how you are going to plot. You are going to write the x-axis and y-axis, and then you are going to plot theta and time. For example, the first reading is how 0, 85, and the second reading 1 minute 82.5. 0 को 85 और 1 को 82.5. So this time t, temperature theta. Okay, time t, temperature theta. So time you have plotted on the x-axis, temperature you have plotted on the y-axis. So for 85 it is 0, 82.5 it is 1. See, 85, y-axis में 85 and x-axis is 0. This is 0. यहाँ पर 0 0 origin लिखो. I have not written. Second reading 1 minute के बाद 82.5. ये देखो, यहाँ पर you have to plot. ऐसा गोल बनाओ ऐसे and you plot the graph. 82.5 यहाँ पर आता है. ये दिस इज 82.5. ऐसे सर्कल बनाओ. जहाँ जहाँ पर तुम लोग रीडिंग बनाते हो वहाँ ऐसे सर्कल बनाओ और ऐसा कर्व आ जाता है. यू गेट अ कर्व लाइक दिस. ये पॉइंट्स प्लॉट करना है तुम लोगों को. मैंने प्लॉट करके रब किया है सो दैट आगे का काम करना था, इसीलिए. तो ऐसे कर्व आ जाएगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे पूरा 24 मिनट्स तक कर्व आ जाएगा. ठीक है. नाउ ये कर्व आने के बाद हमको क्या करना है? ओके, सो नाउ व्हाट वील डू इज, ये देखो, ऑन पेज नंबर 25 नीचे, पेज नंबर 25 नीचे और एक ऑब्जर्वेशन कॉलम है. टेम्परेचर थीटा, डी थीटा बाई डी टी एंड थीटा माइनस थीटा 0. योर थीटा 0 इज़ रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस. ये फिक्स्ड है. ठीक है. अभी हम लोग 4 टेम्परेचर लेंगे. दिस फिक्स, ये भी फिक्स करेंगे. 80, 75, 70 और 65. दीज आर द 4 रीडिंग्स. ये 4 रीडिंग के लिए हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड? फर्स्ट हम ये चारों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करेंगे. कैसे? यहाँ पर देखना ग्राफ. अभी 80 मैंने बोला ना, इधर 80 है, यहाँ पर 80 है, तो 80 पे मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है. यहाँ पर 80 है, तो ऑन द कर्व आई हैव ड्रॉन लाइन. सेकेंड रीडिंग इज 75. ये देखो 75, तो 75 पे मैंने लाइन ड्रॉन, आई हैव ड्रॉन ऑन द कर्व. नेक्स्ट रीडिंग इज 70. So for 70 I will draw a line. For 70 I will draw a line on the curve. Then next is 65, I have drawn a line. So 1 2 3 4, these 4 lines I have drawn. मतलब क्या है? ये चारों पॉइंट्स पे हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. ये चारों पॉइंट्स ऑन द कर्व, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. These 4 places I am going to find out the slope. Okay, these 4 points on the curve I am going to find the slope. How to find the slope? With the help of this mirror. यहाँ पर एक मिरर है, like this mirror है. ठीक है. ये मिरर को I will keep on 80 on the curve. How I will keep? Just see. जैसे मैंने कर्व के ऊपर ऐसे रखा,
टू लुक एट द कर्व इनसाइड, वो डाइवर्ज हो रहा है। ऐसे रखा तो कन्वर्ज हो रहा है। मुझे ऐसे रखना है सो दैट द कर्व इज कंटिन्यूस इनसाइड द मिरर। जो बाहर कर्व है वो अंदर की तरफ कंटिन्यूस है। ये देखो, ये पॉइंट पे इट इज़ कंटिन्यूस, अंदर कंटिन्यूस है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। तो आई विल कीप इट इन सच अ वे ऑन 80। रिमेंबर, यहाँ मुझे 80 पर ही रखना है बिकॉज मुझे 80 पर ही स्लोप फाइंड आउट करना है। ऐसे रखा और ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया और लाइन ड्रॉ करके इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लेना है। एनी 2 पॉइंट्स, आई हैव टेकन दीज 2 पॉइंट्स, this point and this point, and I have marked these points. Y axis पे यहाँ this is 84.5 and x axis पे it is 5। ये देखो 5 है, तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 84.5 और 5। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 80, सॉरी इट इज़ 80 दिस इज़ 80.1, 81 है, दिस इज़ 81, दिस इज़ 81 एंड यहाँ पर दिस इज़ 3, सो 1, 2 एंड 3, ठीक है। नाउ टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स लेके हमको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप पता है ना कैसे करना है, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस मतलब 84.5 माइनस 81 अपॉन 5 माइनस 3, so that will be the slope, whatever is the slope. I may have got it correct or I may have got it wrong, I don't know, but this is the slope, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट ये टेम्परेचर का स्लोप। क्या किया मैंने, आई केप द मिरर इन सच अ वे दैट द कर्व इनसाइड इज कंटिन्यूस। ये जो कर्व में बाहर दिख रहा है वही कर्व के मिरर के अंदर भी दिखना चाहिए। ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया और 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके स्लोप फाइंड आउट किया एंड आई विल राइट द स्लोप हियर, ओके। यहाँ पर लिख के वही स्लोप मैं यहाँ पर भी लिखूंगी, दैट इज योर डी थीटा बाई डी टू। आई हैव जस्ट रिटन इट, हाँ, डी थीटा बाई डी टू। मैंने कुछ भी लिखा है, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट ऑल्सो। सो उसका स्लोप मैंने इधर किया। अभी नेक्स्ट हमको सेम थिंग 75 को रिपीट करना है। सो क्या करेंगे, 75 इधर है, ये 75 है, तो 75 जहाँ पर कर्व पे कट होता है वहाँ पर मैंने ये मिरर रखा। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर मैंने ऐसा रखा तो इट इज़ कन्वर्जिंग अंदर की तरफ, ऐसा रखा तो डाइवर्ज हो रहा है। मैंने ऐसे रखा तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी अ नाइस कर्व अंदर की तरफ, देखो कंटिन्यूस कर्व। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करके वापस यहाँ पर कोई भी, ये लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लेना है, 1 और 2, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज़ अ फॉर्मूला, यू ऑल नो दैट, मैथ्स में किया है तुम लोगों ने। ऐसा करके हमको दूसरा मिल रहा है स्लोप, दैट इज़ 2, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 75 के पास। सिमिलरली 70 और 65 के साथ भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर ये देखो मैंने किया है 70 और 65 यहाँ पर किया है, और उसका रिस्पेक्टिव स्लोप्स मैंने ऐसे अंदाजे से लिखा है। सो दीज आर द स्लोप्स आई हैव रिटन, दीज आर द स्लोप्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके मुझे ये स्लोप्स आए हैं। सो ये स्लोप्स मैंने यहाँ पर लिखा है, सी आई हैव रिटन द स्लोप्स हियर, ये देखो दीज आर द स्लोप्स। सो बट याद रखो कि दी स्लोप्स ज़्यादा करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए. नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट दे शुड कम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मोस्टली. एटलीस्ट 3 रीडिंग शुड कम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, थीटा माइनस थीटा 0. अपना थीटा क्या है, दिस इज थीटा, ये थीटा है. 80 माइनस 30, ये 30 इज 50. देन 75 माइनस 30 इज 45. ऐसा चारों रीडिंग के लिए लिखना है. ये हो गया. तो हमारे पास आया अभी थीटा, डी थीटा बाई डी टी और थीटा माइनस थीटा 0. अभी हमें और 2 ग्राफ्स बनाने हैं. यहाँ पर दिया है फर्स्ट ग्राफ इज डी थीटा बाई डी टी वर्सेस थीटा. ये देखो, डी थीटा बाई डी टी वर्सेस थीटा मतलब डी थीटा बाई डी टी वर्सेस थीटा. दिस ऑन द वाई एक्सिस एंड दिस ऑन द एक्स एक्सिस. ना उसका क्या कैसे रखना है वो भी मैंने दिखाया है. आफ्टर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इट विल बिकम 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 लाइक दिस. 3.5 ऐसे वाई एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ओके, तो तुमको वो इट विल कम इन सच अ वे, द लाइन विल कम इन सच अ वे दैट इट इज कोइंसाइडिंग विथ द. ये देखो, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है ना, ऐसे आना चाहिए. मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है 30 पे इंटरसेक्ट होता है. दिस शोज दैट द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. दिस शोज दैट द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो इसका आया रिजल्ट, ये देखो. आई विल शो यू दिस रिजल्ट. मैं दिखाती हूँ. इससे हमको रिजल्ट मिलता है, आई थिंक ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज. ये रिजल्ट आया. रूम टेम्परेचर बाय ग्राफ इज 30 डिग्री सेल्सियस. हमको यहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस आया था, तो वही 30 डिग्री हमको इधर आना चाहिए. ये देखो, ये वाला लाइन नहीं, मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ऐसे. ऐसा नहीं है कि सब पॉइंट्स लाइन पे पास होना चाहिए. भले ही ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे, कैसे भी पॉइंट्स आएंगे, बट मेक इट पास थ्रू 30. ये हो गया फर्स्ट ग्राफ. अभी दूसरा ग्राफ है सेम. इसका ये सेम रहेगा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऑन दी वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में थीटा माइनस थीटा 0 मतलब डी थीटा बाई डी टी वर्सेस थीटा माइनस थीटा 0. इसका भी इट विल बी द सेम 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50. और इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, इट शुड कम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इट मे नॉट कम, कैसे भी आएगा, ऐसे भी आने से यू जस्ट लाइन ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बस. हाँ, यहाँ पर दिखाया कि हर एक पॉइंट जाता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. जस्ट ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड दीज पॉइंट्स में गो पास थ्रू द लाइन और नॉट. एक लाइन पास हुआ तो भी चलेगा, बट लेट इट पास थ्रू द ओरिजिन. तो ये हो गया इसका ग्राफ. देन दीज 3 ग्राफ्स आर देयर, यू हैव टू ड्रॉ एंड देन यू हैव टू राइट द एंटायर रिजल्ट. ये पूरा रिजल्ट तुम लोगों को लिखना है. द सेकेंड ग्राफ अगेंस्ट थीटा माइनस थीटा 0 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वेरीफाइड. तो ये सारे लिखना है, और ये पूरा तुम लोगों को अपना रफ जर्नल में कंप्लीट करना है और मुझे पोस्ट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल. और ये वीडियो को बिल्कुल डिलीट मत करना, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत यूज़फुल होगा. सो यू विल कंप्लीट इट एंड post the 3 graphs and as early as possible.